Rahim. My name is Dr. Ahmed Kamar, and I'll be teaching this course, which is Introduction to Sociology. So in this course, we'll be studying some of the very interesting things about sociology and the social world around us, and I hope you would really enjoy this course. Uh, Let me give you a few words about my own introduction, and then we would move on to the course itself. As you know, my name is Dr. Ahmed Kamar, and I have been associated with this profession teaching since last 20 years. I started teaching back in 2001 when I was working in an industry. I was working in a large project, mega project, Sialkot International Airport, and then I worked for a couple of other industries, including sports goods industries, textile, and I also did a couple of consultancy projects, right? Um, then I started my MPhil back in 2005, and I decided to quit my job because I want to pursue exclusively one profession, which is teaching profession. So I started my MPhil back in 2005, joined ComStats in 2006 as a lecturer, and then proceeded for my PhD in 2008 to UK, University of Sheffield. And you might have heard about University of Sheffield. Sheffield is one of the world's top 100 universities. So it's it's quite good university. I did my PhD there. I also got an opportunity to teach there, and I taught at University of Sheffield Management School for about 6-7 years. Once completed my PhD, I came back to Pakistan, joined back ComStats, and I've been teaching this course. Now, as far as the course is concerned, sociology seems very slightly, different from your mainstream business courses, right? Now, let me first tell you why I'm the suitable person to teach this course, because a number of things I've discussed in my PhD work, and one of the area of focus in my PhD thesis and my different researches is a cross-cultural context. So sociology is something which is about culture, which is about context, which is about the social world around us. So I have not only the teaching, I've taught this course a number of times before, but I also have the research background that is required to teach this course, right? So starting with chapter number 1, I would share the course outline and everything with you, but we'll straight away today we are going to start chapter number 1, which is sociological perspective, right? The first thing is, what is sociology? What is sociology? Scientific study of social behavior in human groups. What does that mean? Scientific. So if you look at this, I'm highlighting it with the laser. Now you can see the scientific study. When we say sociology is scientific study, that means simple observation of random events. For example, if we're standing on the road and we are observing few people are robbing others, right? That would not be a scientific study. That is random observation. Random observation.
So that would not constitute sociology. That would not be classed as sociology. When we discuss sociology as a discipline, it has to be scientific study of social behavior in human groups. So, we'll contrast sociology with psychology in a minute. Sociology deals with the group, with people in the society, whereas when we talk about the psychology, it's more about human mind, the mind of an individual. So sociology is about the collective affairs, right? So sociology is study of human and social behavior, and it's a scientific study. In other words, it focuses on how relationships influence people's attitude and behavior. How relationships influence people's attitude and behavior. For example, your relationship with teacher, how does it influence your other class fellows' attitude and behavior? Teachers' attitude towards the institute, towards the university, how does that influence people's behavior? Relationship, parents' relationship, how does it influence the children, right? So sociology talks about how societies develop and change. We'll discuss in the coming slides. You can all understand societies are not like, the way societies are today. They were not like that 500 years back or 5,000 years back or maybe 10,000 years back. We can all understand 10,000 years back, human life was in very primitive stage. अब ये कैसे हुआ है कि वो यानी जंगल में रहने वाला the person who was living in the jungle, he or she becomes a civilized person. That is what we study in sociology, how societies develop, how they change. Societies 200 years back, they were different. Even societies 10 years back, now you often might have heard our parents or the older generations, they often complain. And what is the complaint? वो कहते हैं कि जनाब ये आजकल की नस्ल बड़ी फर्क हो गई है, आजकल की नस्ल नई नस्ल जो है ये बड़ी डिफरेंट है, नई नस्ल जो है वो हम तो ऐसे करते थे, इन्हें ये बड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं. अब इसका दैट मीन्स सोसाइटीज डेवलप एंड सोसाइटीज चेंज, and that is what we study precisely in sociology, right? So in other words, in sociology we study human behavior as a group, and we see how societies develop, how societies change, because groups change, humans change, and their collective behavior change over the time, right? Sociology is the discipline that attempts to understand social forces that are outside us and shapes our lives, interests and personalities. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ. Sociology is a discipline that attempts to understand social forces. One of the social forces these days is the social media, isn't it? Did it change? Did it bring change in our lives or not? Did it shape the way we think? Did it shape our lives or not? I think it did. Did it change our interest? अब देखें ना आप, सोशल मीडिया के आने से पहले जो लोगों के इंटरेस्ट थे, पर्सनालिटीज थी, द वे पीपल, हम मतलब लोगों के पास सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही होती थी कि रात को कभी बैठ के टीवी देख लिया 1 घंटा. अब वो
वो बहुत सारी एंटरटेनमेंट जो आपकी 1 घंटा टेलीविजन प्रोग्राम होती थी, दैट इज रिप्लेस्ड बाय सोशल मीडिया, मोर लाइव इंटरेक्शन, a wider friendship circle, right? So all these things that they have basically, they influence the way we live, right? So sociology studies all those changes, all those forces that change our lives, right? Sociology is the science of society and social behavior. In other words, in simpler words, it is the science of society and social behavior. ठीक है, पहले हमने ये डेफिनेशंस किया है कि सोच हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, जो चीज़ें वो स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट को, पर्सनालिटीज़ को. उससे पहले हमने लास्ट स्लाइड में अगर आप देखें, हमने ये भी बात की कि हाउ सोसाइटीज डेवलप एंड चेंज. अब इसको समराइज करें तो हम ये कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी. इट्स अबाउट सोसाइटी and it's about social behavior, right? So two things, it's about society, it's about social behavior, right? Society के बारे में हम देखते हैं हम कि कैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी चेंज हो रही है, ड्रेसिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन कैसे चेंज हो रहे हैं. सो वी आर स्टडीइंग द सोसाइटी, और लोगों के बिहेवियर, सोशल बिहेवियर टुवर्ड्स इंटरनेट, फॉर एग्जांपल बिहेवियर टुवर्ड्स गेम्स. आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो, आज से 20-25 साल पहले वीडियो गेम्स होती थी, दुकानें होती थी, शॉप्स होती थी, और वीडियो गेम्स पे जाके दुकानों पे वीडियो गेम्स खेलना, वो लोग चोरी छुपे जाते थे घर वालों से और जाके वीडियो गेम्स खेलते, तो आमतौर पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता था. अब मोबाइल फ़ोन पे गेम्स बेशुमार आ गई हैं और लोग घरों में बैठ के खेलते हैं गेम्स. इसका मतलब सोशल बिहेवियर, सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स गेमिंग has changed. So that is sociology studies why did it change, how it changed. So sociology का ये है कि आप स्टडी करते हैं इन सारी चेंजेस. Now assumptions of social perspective, sociological perspective. अब पहली चीज ये, हर चीज देखें, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो उसकी कुछ assumptions होती है. Sociological perspective has certain assumptions. ठीक है, पहली assumption, individuals are by their nature are social being, right? अब आप कहेंगे कि नहीं जनाब, मेरा तो वो दोस्त है, वो तो सोशल बीइंग है ही नहीं है, वो तो जिंदगी में किसी से बात नहीं करता. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कम सोशल होते हैं. लेकिन हम सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं एनीबॉडी, एनी ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग. अगर वो किसी देहात में बड़े दूर दराज इलाके में रहता है, so still he or she would have some social circle. So individuals for most part are socially determined. Socially determined. एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद शफीक है और उसका बेटा है, उसका नाम लेट्स से रफीक है, तो रफीक के लिए मोहम्मद शफीक क्या है? फादर. He is socially determined. He is determined by his status, is determined by the social relationship he has got. आप यूनिवर्सिटी में है, क्या है? स्टूडेंट है. अब वही टीचर अगर और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, लेट्स से यूनिवर्सिटी से पहले आप एक दूसरे को नेबर के तौर पे जानते हैं, तो नेबर इटसेल्फ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है. अगेन वी सोशली डिटरमिन्ड, you know, the relationship, individuals are socially determined. अगर कोई आपसे पूछे कौन है, आप कहेंगे मेरा नेबर. आपसे कोई पूछे मेरे बारे में ये कौन है, आप ये नहीं कहेंगे अहमद कमर है, आप कहेंगे he's your teacher, he's my teacher, right? So individuals for most. अब ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि हम जब भी
कोई एनालिसिस करते हैं तो हम पर्सनालिटी से ज़्यादा हम इस चीज़ का करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करते हैं, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करते हैं, बिकॉज पीपल आर सोशली डिटर्मिन्ड। आप इमेजिन करें कि जो एक टीवी एक्टर है वो घर में बाप भी है, अब घर में उसका जो स्टेटस है दैट इज डिटर्मिन्ड डिफरेंटली, सोशली डिटर्मिन्ड बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली। Individuals create, sustain and change the social forms within which they conduct their lives. Individuals create, sustain, change the social forms within which they conduct their lives. मिसाल आपको बड़ी आसान सी देता हूँ। आप में से जब यूनिवर्सिटी आए तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी सोशल वर्ल्ड क्रिएट की, आप 5-7 दोस्त बनाए, है ना? तो आप इंडिविजुअल्स क्या करें? दे क्रिएट, they sustain, they change the social form। एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप से तीसरा ग्रुप बना, ठीक है? तो जो स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप था उससे बढ़ के आप यूनिवर्सिटी के एक फ्रेंडशिप सर्कल, वहाँ से कोलीग्स का सर्कल बनेगा। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? दे क्रिएट, सस्टेन एंड चेंज द सोशल फॉर्म्स। सोशल फॉर्म अकेला सिंगल होता है बंदा, मैरिड हो जाता है, उसके बाद सोशल फॉर्म चेंज होगी, ठीक है? स्टूडेंट से एम्प्लॉय हो जाता है। अब ये सोशल फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे सोशल फॉर्म्स चेंज होती है आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे कॉलेज से निकल के, स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बने हैं, यू हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द लाइफ एज वेल एज यू हैव वेरी डिफरेंट लाइफ। क्या आप समझते हैं कि जो स्कूल लाइफ थी और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ एक जैसी है? स्कूल में टीचर्स बहुत कई दफ़ा आपको पुश भी करते थे, डांट बहुत ज़्यादा डांट लेते थे, कई स्कूलों में अब तो ज़रा कम हो गया, बच्चों को मार भी लेते थे। यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी डिफरेंट है, मोर इंडिपेंडेंट, राइट? इट्स मोर एंटरटेनिंग, मोर सेल्फ ड्रिवन। आपको डांट के पढ़ाने की बजाय आपको खुद पता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है? तो सोशल इंडिविजुअल्स क्रिएट, सस्टेन एंड चेंज द सोशल फॉर्म्स within which they conduct their lives। अब ये सारी चीज को समझने के लिए हम ये कहते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। Wright Mills, one of the prominent author, describes sociological imagination as an awareness of the relationship between an individual and the wider society, and ability to view one's society as an outsider would without one's limited experiences and cultural biases। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं, एक कोई औरत सड़क पे जा रही हो और आपने उसे बुलाना हो और औरत की एज है 55 इयर्स, क्या आप उसे कहेंगे? इधर आओ औरत, या अगर आपको उसका नाम पता है तो क्या उसका नाम लेंगे? शुमाइला इधर आओ। नहीं, आप अपनी एज के हिसाब से उसे कहेंगे आइदर आंटी और व्हाटएवर, खाला, व्हाटएवर, ठीक है? अब ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? जिस सोसाइटी में रहते हैं, चाहते या ना चाहते हुए हमारे ज़हनों में उस सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट हमारे ज़हनों में भरा होता है। हम सोसाइटी को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से सोसाइटी ने हमें बड़ा किया। जैसे ही हमने देखा किसी ने स्लीवलेस, किसी लड़की ने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है, तो हम उसे वैसे ही जो सोसाइटी से हमने सोचा है, सुना है, उसके मुताबिक हम जो है सोचेंगे, ठीक है ना? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये है कि हम इस चीज़ से अवेयर हों कि मेरा
सोसाइटी के साथ ताल्लुक क्या है? क्या मैंने जिसको स्लीवलेस लड़की को देखा और वो मैं इसे जिस तरह परसीव कर रहा हूँ, क्या ये स्टाइल ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब क्या आप सोसाइटी से हट के, मसलन हम जैसे ही हम देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, कहते हैं अंग्रेज़ बड़े बेहया होते हैं, उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है। क्यों? उनके नज़दीक तो ये ड्रेसिंग बड़ी नॉर्मल सी है, क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम उस सोच से देखते हैं जिस सोच से हम पले बड़े हैं। ठीक है ना? अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये है कि आपने अगर सोशियोलॉजी के इश्यूज का सही एनालिसिस करना है तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर, आप उस सोसाइटी में अगर रह भी रहे हैं तो आप उस सोसाइटी के जो बायसेस हैं उसको अलहदा करके आप उस सोसाइटी को देख सकें। इसको हम कहेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। दैट इन अदर वर्ड्स मेन क्वेश्चनिंग द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दैट शेप आवर सोशल बिहेवियर। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जनाब पेरेंट्स, why they are respectful, why do we need to respect them, अब ये आप स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, क्योंकि ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। वो कहते हैं माँ बाप की बात मानो, कहते हैं बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप माँ बाप की बात ना माने, मैं सिर्फ आपसे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि सोसाइटी के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होते हैं। आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये है जिससे राइट मिल्स ने ये कहा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये कि आप उन स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करें। आप ये क्वेश्चन करें कि क्यों हम यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं, हम छत पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी जाना क्यों जरूरी है, बाग में जाना क्यों जरूरी नहीं। बंदा आई मीन वन कैन गो टू जंगल, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और वो जैसे कहते हैं, वो आपने मूवीज में देखा, ज्ञान पा गया है, उसे बड़ी कोई सोचे हैं ऐसी कि उसने बड़ा इल्म हासिल कर लिया। हम ऐसे क्यों नहीं करते? हम इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स जो सोसाइटी के हैं इसमें बंधे हुए, और इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स में, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स किस स्कूल में हम जाते हैं। अब आप सोचें ज़रा, आपका छोटा भाई आपके जी कोई आपसे पूछे किधर जाते हैं, कौन से स्कूल में, आप कहते हैं हम उसे स्कूल नहीं भेजते, हम उसे रोजाना जो है ना सैर करने भेजते हैं, वो खुद ही चीजें देख लेगा। तो लोग इससे बड़ा ऑड समझेंगे। उन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स को चैलेंज, क्वेश्चन करना, चैलेंज ना सही, क्वेश्चन करना कि क्यों है। Why do we have schools? Why do we have classes in school? क्लासेस की बजाय हर बंदा एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के तौर पे क्यों ट्रीट नहीं किया जाता? क्यों हम क्लासेस में पढ़ते हैं? मैं ज्यादा अगर इंटेलिजेंट हूँ और मेरा दूसरा क्लास वाला कम इंटेलिजेंट है, मेरे दोनों को एक जैसा सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो ये है क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स दैट शेप आवर सोशल बिहेवियर। बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, क्यों करो? छोटों की इज्जत क्यों ना करो, बड़ों से प्यार क्यों ना करो? अब ये सारे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं सोसाइटी के। अगर वो कहता है, मिल्स का कहना है कि अगर आप बिल्कुल सोशियोलॉजिकली इंडिपेंडेंटली सोचना चाहते हैं, जिसमें आपका जो जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं उसका बायस ना हो। अब आपको हैरानी हो रही है कि मैं बातें कर रहा हूँ कि जी बड़ों की इज्जत ना करो, वो तो करते हैं सारी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। यूरोप में आपका नेबर अगर 70 ईयर का है और आप 15 साल के हैं, तो आप उसको उसके फर्स्ट नाम से ही बुलाएंगे। इफ ही इज जॉन और माइकल और व्हाटएवर, आप उसके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। कोई अंकल, बाबा, चाचा जैसे हमारे कहते हैं वो नहीं आप करते थे, क्योंकि उनकी अजम्पशन ये है कि डिफरेंट पीपल आर इक्वल। हम ये कहते हैं कि बड़े जो है इज्जत के काबिल है, छोटों को इज्जत करनी चाहिए बड़ों। अब ये हर सोसाइटी के अपने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। अगर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, क्योंकि आप एक इमेजिनेटिव वर्ड में उस सोसाइटी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो कहते हैं जी उन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स को आप क्वेश्चन करें। ठीक है,
then seeing the solution to social problem not in terms of changing people but in changing the structure of the society. वो आप ये नहीं कि टीचर चेंज कर दें यहाँ, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी क्यों ना ख़त्म कर दें, हम एक नई चीज़ बनाते हैं और वो हम दरख्तों पे बैठ के पढ़ा करेंगे. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भी हो सकती है. तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स in terms of not in terms of the changing people but actually in changing the structure of the society. So in other words, it looks beyond a limited understanding of the human behavior. Human behavior limited understanding इसलिए कहते हैं कि जो आपने अपनी सोसाइटी में सीखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक लिमिटेड है. एक बंदा एक ऐसी बस्ती में पैदा हुआ है, ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे सारे चोर हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है उस ह्यूमन बिहेवियर की कि अच्छी चोरी कैसे की जा सकती. ठीक है ना. अब एक बंदा जिसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी जिस मतलब जो लेट्स से बचपन से बड़े किसी हाई क्लास स्कूल में गया और बाद में ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड है. उसने दुनिया के वो रंग देखे ही नहीं हुए जो वो मैं कह रहा हूँ कि चोरों वाली पार्टी ने देखे थे. अब ये देखें कि इसलिए हम ये कहते हैं कि हर बंदा एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ऑपरेट करता है. इस पर हम इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में दोबारा बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इट लुक्स बियॉन्ड द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. राइट. So, sociological imagination involves willingness to view social world from a perspective of others. मैं अपने पर्सपेक्टिव में दूसरे कैसे देखेंगे इस दुनिया, दूसरे मुझे कैसे देखें. ठीक है. और दूसरा ये फोकस ऑन द सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस फैमिलीज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. मैं मिसाल आपको इसकी देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बगैर इस चीज़ को समझे कि फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में 30 साल वॉर हुई है. ठीक है. अब वॉर का बैटल का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है कि लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं. लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता कि किसी को मारना बहुत बड़ी बात है. तो अब ऐसे जो सिचुएशन में पले बड़े हों, अब बहुत दफ़ा उनके लिए ह्यूमन लाइफ की कदर वो नहीं रहती जो एक ऐसे मुआशरे में जिन्होंने कभी कत्ल देखा ही ना हो. ठीक है ना. बात आप समझे. तो अगर उन्होंने कभी कत्ल देखा ही नहीं होगा, अच्छा अब इसलिए जब आप उसे एनालाइज करते हैं ना, फोकसिंग ऑन सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, जब आप उसको एनालाइज करेंगे आप सारे सर्कमस्टांशियल कॉन्टेक्सचुअल चीज़ें सामने रखेंगे. इफ समबडी इज एग्रेसिव in nature, why he or she is aggressive? Is it because he has suffered a lot of social and economic problems during the war time or during any other time? कोई उस इलाके में गुर्बत थी वैसे. ठीक है. हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस क्या थे, लोग कैसे बिहेव करते थे हिस्टोरिकली, उसका इस बंदे की पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट हुआ है. ठीक है. ये सारी चीज़ें जब आप समझ के किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, दैट इज part of the sociological imagination. So it means जब आप सारे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं फलां बंदा चोर है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस देखें चोर जो भी मिलता है उसे मारना है, अब ये आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप ये चीज़ एनालाइज करें कि चोर क्यों बना, ठीक है, क्या उस सारे पर्सपेक्टिव को देखें, क्यों चोर बना, उसे क्यों, क्या पैसों की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत क्यों है, क्या इसमें किसी और का जुल्म है जो उस तक पैसे नहीं पहुंचने देते, क्या उसे किसी ने नौकरी से निकाला है. अब जब सारा पर्सपेक्टिव आप देखते हैं तो यू आर गोइंग बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग. यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट एंड यू आर एंटरिंग इनटू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डोमेन. राइट. अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा चेंज ये टॉपिक है, साइंस एंड सोशियोलॉजी.
साइंस एंड सोशियोलॉजी। साइंस क्या, आपने पढ़ी है सारों ने साइंस। साइंस, पहला तो इम्प्रेशन आता है साइंस के, किसी ने कोई लैब कोट पहना हुआ है सफेद सा और वो किसी लैब में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है, बड़ा साइंटिफिक सा लगता है। अच्छा, साइंस हम कहते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मेथड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, साइंस क्या है, थ्रू ऑब्जर्वेशन निकलती है चीजें। मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जर्व किया एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि स्टार्स की मूवमेंट इस तरह की, हम उसे साइंटिफिक चीज कहते हैं। आपने एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेजर किया कि लेट्स से जब आप गाड़ी का पैडल दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक लग जाती, गाड़ी रुक जाती है, because these are scientific systematic observation। अब फर्क यह है कि साइंस जो है ना दो तरह की, एक को हम कहते हैं नेचुरल साइंस, राइट, जो आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, और दूसरा है सोशल साइंस। ठीक हो गया। नेचुरल साइंसेस क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ नेचर एंड द वे दे इंटरैक्ट एंड चेंज। एटम में क्या, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, प्रोटॉन्स क्या है, ठीक है, उनकी मूवमेंट कैसे है, अब पंखा कैसे चलता है, किन प्रिंसिपल्स के तहत, ठीक है, नेचुरल साइंस के टॉपिक्स है ना ये। तो नेचुरल साइंस जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ नेचर and the ways they interact and change। नेचुरल साइंस के मुकाबले में सोशल साइंसेस क्या, स्टडी ऑफ सोशल फीचर्स ऑफ ह्यूमंस एंड द वे दे इंटरैक्ट एंड चेंज। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि since social science is about human beings and this, sorry, social science is about human being and natural science is about the matter, नॉन लिविंग एंटिटीज। अब देखिए नॉन लिविंग एंटिटीज जैसे पानी, हम कहते हैं H2O, कि जब भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो हमें पता है वो पानी बन जाएगा। लेकिन सोशल साइंसेस बड़ी डिफरेंट है। क्या आपको पता है कि पर्सन ए को जब 10 करोड़ रुपए मिलेगा तो वो क्या करेगा, और पर्सन बी को मिलेगा 10 करोड़ तो वो क्या करेगा, पर्सन सी को मिलेगा वो क्या, हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होगा। इसलिए सोशल साइंसेस जो है दे बेसिकली look at the human behavior, features of human and the ways they interact and change, way humans interact, right? Now study, in other words, study the influence that society has on people's attitude and behavior। सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है, सोशियोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, ह्यूमन एटीट्यूड स्टडी करते हैं, राइट, seek to understand ways in which people interact and shape society। Now the next question is sociology common sense? क्योंकि आप कहते हैं ना, आप ये बात कर रहे हैं आपके ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन कैसे आपस में बोलते हैं, तो हमें तो पता है कि लोग एक दूसरे इज्जत से बोलते हैं, ठीक है, मुझे सारा पता है कि लोग जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, मुझे सारा पता है यूनिवर्सिटी में जो है ना वो बच्चे क्या करते हैं, कैफे में बैठ के क्या करते हैं, अब ये सारा कुछ पता है, कॉमन सेंस, ठीक है। इसको हम सोशियोलॉजी नहीं कह सकते। सोशियोलॉजी डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग एज फैक्ट बिकॉज एवरीवन नोज इट। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं फैक्ट समझते। अब बहुत सारे
लोग एक चीज को फैक्ट समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझा जाता है कि रेस्टोरेंट जो है खाना खाने के लिए, ठीक है ना, इसे वहां सिर्फ खाना ही खाया जाता है, ड्रिंक्स वगैरह के लिए लोग नहीं जाते, ठीक है। अब सारों को भी अगर ये पता है, जरूरी के फैक्ट हो सकता है उनकी एक्सक्लूसिव कोई चाय या कोई वैसे ड्रिंक्स का भी अलग से हो सर्विस हो। सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस पे नहीं जाती। कॉमन सेंस डजंट मीन इट्स अ फैक्ट। Each piece of information must be tested, recorded and analyzed. हमने शुरू में कहा था कि there must be a systematic way. Systematic way का मतलब यह है कि it must be tested, recorded and analyzed. Right? Tested, recorded and analyzed. Now, अगर क्लास में हर बंदे को भी ये पता है ना, ये कहते होते क्लास में से एक दूसरे को सुन के वो कहते यार वो फलां टीचर नहीं अच्छा, तो ये फैक्ट बन गया? नहीं हो सकता है कि वो टीचर बहुत अच्छा हो और क्लास में सारी की सारी बात किसी एक बंदे की ओपिनियन की वजह से बना ली हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या इस क्लास के वो टीचर बहुत बुरा है तो असल में या बहुत अच्छा है तो असल में बिल्कुल उसके उलट हो। जब तक हम किसी साइंटिफिक मेथड पे उस चीज को टेस्ट ना कर लें, किसी इंफॉर्मेशन को उसे रिकॉर्ड ना कर लें, उसे एनालिसिस ना उसका करें, we cannot say it is sociology. So there's a difference between common sense and sociology. Common sense is whatever you believe is the true knowledge, right? That is common sense. Sociology requires scientific approach. For example, ये कहा जाता है women tend to be chatty, कहते हैं औरतें बड़ा बोलती हैं। कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है कि औरतें बहुत ज्यादा बोलती हैं, और हो सकता है ये बात ठीक ना, मर्द बड़े बड़ा बोलते हैं और एक कुछ औरतें ऐसे वो बिल्कुल ना बोलती हैं। इसलिए जब तक हम फैक्ट्स पे नहीं करेंगे, हम because it is known by everybody, we cannot say it is sociology, right? Military marriages are more likely to end in separation or divorce. ये लोग कहते हैं कि नाम आर्मी में जो मैरिजेस होती हैं स्पेशली वेस्ट में, वो जल्दी उनमें डिवोर्स हो जाती है। दिस कॉमन सेंस knowledge that is all around, but that does not mean it is sociology because it is not scientifically studied, right? So जब हम साइंस की बात की तो साइंस में डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। अब इसके लिए हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी। पहले ये देखेंगे थ्योरी क्या है। Theory is a set of statements that seek to explain problem, action and behavior. यानी आपने बहुत बार सुना थ्योरी में क्या चीज होती है? लॉजिक होती है। लॉजिक किस चीज की? एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स, इट सेट्स द स्टेटमेंट्स। ये हम ये कह रहे हैं कि थ्योरीज होती है डिफरेंट स्टेटमेंट से मिलकर हम एक थ्योरी बनाते हैं। Theory statements that seek to explain problems, actions and behavior. For example, आपने कहा मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड एक थ्योरी है। वो क्या कर रही है? एक प्रॉब्लम है मोटिवेशन का, ठीक है, वो बता रही है कि इस तरह के ह्यूमन बिहेवियर अगर होंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, उस प्रॉब्लम को, उस बिहेवियर को, एक्शन को एड्रेस कर रही है, राइट? इफेक्टिव थ्योरीज दैट have explanatory and predictive power. अब थ्योरी हम कैसे बनाते हैं? हम मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। मसलन आपने देखा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं यूनिवर्सिटी के पहले दिन, उसके बारे में आपने एक थ्योरी बनाई। लेकिन वो थ्योरी असल में तो यूजफुल उसी वक्त होगी कि यूजिंग दैट थ्योरी वी कैन प्रेडिक्ट
The next year, when the new students would come, they would behave in a similar fashion. इसका मतलब है theories, good theories have effective explanatory and predictive power. ये नहीं कि पिछली दफा की थ्योरी आगे से खत्म। भाई अगर सारे पिछले इवेंट्स के बारे में ही हो, उसकी फ्यूचर में हमारे पास कोई गाइडेंस उससे ना हमें मिलती हो, तो हमें थ्योरीज क्या इस पर काम करना फजूल है। ठीक है, बिजनेस में आपने मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी की, उनकी बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस आपके सही साबित हो गए, आपने थ्योरी बना ली। अब थ्योरी इसलिए बनाइए कि हम कहें कि इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम हो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, we can apply this model, we can use this theory, and we can predict the future. This theory has explanatory power, right? So theory is a set of statements that seeks to explain problems, actions, and behavior. Effective theories have explanatory and predictive power. I just explained it to you. And theories are never a final statement about human behavior. One theory, बहुत अच्छी theory आती है, उससे के बाद कोई 10 साल बाद एक और उससे अच्छी आ जाती है. So it's not a final word. Human behavior समझना आसान काम नहीं है, ठीक है ना, हर रोज इसमें चेंजेस आती रहती है. लेकिन अच्छी theory जो है वो predict तो जरूर करती है, लेकिन it is never a final statement. बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उनके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने उसे चैलेंज किया और कहा कि इससे बेहतर थ्योरीज मौजूद है. ठीक है, इसलिए थ्योरीज जो है दे आर नेवर एवर अ फाइनल स्टेटमेंट. एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं से पढ़ी थ्योरी के बारे में, और वो है कि वो आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं जनाब ये बुकिश नॉलेज है, हमें तो ये पढ़ा रहे हैं बुक से और वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है. तो मेरे ये आपको ये खुद से क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, दुनिया की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, 8-10 हज़ार यूनिवर्सिटी दुनिया की जो डॉक्यूमेंटेड है उनमें से, जहाँ पे बुकिश के अलावा कोई दूसरा नॉलेज का सोर्स हो. तो बुक जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज. सो बुकिश नॉलेज क्या है कि इसकी अहमियत कम ना करें. ठीक है, सो इसी तरह थ्योरी की, जब वो कहते हैं थ्योरेटिकल सारा, भाई थ्योरी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक वो बड़ा अच्छा कोट है किसी का, और उसने कहा है कि there is nothing as practical as good theory. अच्छी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज कोई नहीं. ठीक है, there is nothing as practical as good theory, right? Now theory is a set of statements that seek to explain problems, action and behavior. ठीक है, ये चीजें हमने कवर कर. अब आ गया डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. आप देखिए, मैं आपसे अभी आपसे बात कर रहा था, सोशियोलॉजी को बहुत पुराना डिसिप्लिन नहीं है. यानी ये बात नहीं है कि लोग सोशल ग्रुप्स में इंटरेक्शन नहीं करते थे, इस चीज़ को समझते नहीं थे कि ग्रुप्स में कैसे बिहेव करना है, सब कुछ होता था. लेकिन सोशियोलॉजी एज एन ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन only started when European theorists in the 19th century made pioneering contribution to the development of science of human behavior. ठीक है, उससे पहले बात बहुत होती रही है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को एक साइंस के तौर पे रिकॉग्नाइज जब किया गया 19th सेंचुरी के दूसरे हाफ में, अब यहाँ से बात होनी शुरू हो गई सोशियोलॉजी. ठीक है, ये है उसके बाद ये डिफरेंट ऑगस्ट अकाउंट, हर्बर्ट स्पेंसर, डरहेम, मैक्स वेबर, ये सारे जो है इनका सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था, और हम इन्हें क्यों कहते हैं क्लासिक थ्योरिस्ट, इन्हें कहते हैं कि इन्होंने अर्लीस्ट थ्योरीज सोशियोलॉजी के बारे में दी थी. राइट, तो ये इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आप यहाँ तक अभी देखें, बुक से पढ़ें भी कि थ्योरी क्या होती है. ठीक है, आपने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है आपस में, सोशियोलॉजी और साइंस का क्या ताल्लुक है, what is natural science, what is the science, social sciences, right? और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में आप देखें. ठीक है, assumptions, these are words. So इन चीज़ों के बारे में आप देखें, और इससे नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको आप स्टडी कर लें. ठीक है,
ये आपको इंशाल्लाह बुक भी मिल जाएगी, बाकी चीजें मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। तो वी विल स्टॉप हियर, राइट, एंड we would continue with this in the next lecture, right? So thank you so much. This is the first lecture. We'll have an interaction session sometime later, and then I'll explain a few more things, right? Okay, assalamu alaikum then.